said circumstances refusal of stay, the conviction would not in any way result in injustice to the applicant. In view of the foregoing discussion, in my considered opinion, there is no reasonable ground to stay the conviction of the applicant in the facts and circumstances of the case. Impugned order passed by the appellate court is just, proper and legal and do. मैं नहीं समझता कि अगर ये था तो जो विधायिका थी उसने ऐसे ऑफेंस के लिए मैक्सिमम दंड 2 वर्ष रखा, जिसको इस पैरा 56 में जैसे कोई डेथ पेनल्टी का ऑफेंस बना दिया है माननीय जज ने। ये सब चीजें और अन्य चीजें हम रखेंगे समक्ष। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात की हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यह फैसला निराशाजनक जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं था। हम आपको पहले से कई खबरें दिखा रहे थे जिसमें गुजरात की अदालतों के द्वारा राहुल गांधी के मामले में लिए जा रहे फैसले सवालों के घेरे में खड़े होते आए हैं। और जैसे ही जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने फैसले की कॉपी सार्वजनिक की, उसके बाद तो जस्टिस हेमंत प्रक्षक का पूरा धागा ही अभिषेक मनु सिंघवी ने खोल दिया। धाकड़ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। राहुल गांधी के मानहानि केस को वही देख भी रहे थे। उन्होंने फैसले की कॉपी के पैराग्राफ को चुन चुन कर उठाया है और बताया है कि कैसे जस्टिस हेमंत प्रक्षक निर्णय की कॉपी लिख तो रहे थे, लेकिन उसमें कई ऐसे जवाब दिए ही नहीं गए जिसको लेकर राहुल गांधी के तरफ से फाइट कर रहे वकील सब सवाल खड़े कर रहे थे। तो इसके जवाब नहीं आए और जो भी फैसला आया है उस फैसले को दोषपूर्ण करार दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां तक कहा कि अब हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जनता की अदालत में भी इस बात को रखेंगे। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कौन कौन सी गलतियां जस्टिस हेमंत प्रक्षक की उन्होंने पकड़ी हैं। गुजरात के हाई कोर्ट ने कहां अपने निर्णय देने में चूक कर दिया है। अपने स्क्रीन पर आप देखिए जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने किन किन बिना पर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, कैसे। Trying to seek stay of the conviction of the absolute non-existent ground. It is well settled principle of law that stay of conviction is not a rule but an exception to be resorted in the rare cases. Disqualification is not limited only to MP and MLA. Moreover, as many as 10 criminal cases are pending against the applicant. It is now need not for the hour to have purity of the politics. Representative of the people should be men of a clear character antecedents, and is also appears to be the record that the after filing of the said complaint, another complaint came to be filed against the present accused, out of which the complaint was filed by the grandson Veer Savarkar in concern court of Pune when the accused used defamation utterance against Veer Savarkar at Cambridge, and another complaint was also filed in the concern court of Lucknow. In the backdrop and said circumstances refusal of stay, the conviction would not in any way result in injustice to the applicant. In view of the foregoing discussion, in my considered opinion, there is no reasonable ground to stay the conviction of the applicant in the facts and circumstances of the case. Impugned order passed by the appellate court is just, proper and legal and do not call for any interference. However, it is hereby requested to concern learned district judge to decide the criminal appeal on its own merits and in accordance with law as expeditiously as possible. In view of the above, the present criminal revision application deserves to be dismissed, and accordingly it is dismissed. Please rule is discharged. Yes. अब जरा हिंदी में भी समझ लीजिए कि जज साहब ने क्या कुछ कहा है। आज तक ने लिखा कि जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने कहा है राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिनका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट का आदेश न्याय संगत एवं उचित है। इन्होंने सेशन कोर्ट के निर्णय का भी बचाव कर लिया। इसके अलावा अपने फैसले पर भी वो अडिग हैं कि राहुल गांधी ने जघन्य अपराध कर दिया है,
मानहानि का केस जो उन पर लगा है, इससे प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा आहत हुई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी आहत हुए हैं तो वो शिकायतकर्ता क्यों नहीं है? पहला सवाल तो यही उठना चाहिए। खैर, आपने जस्टिस हेमंत प्रक्षक की बातों को सुन लिया, समझ लिया। अब आइए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे पॉइंट टू पॉइंट इनकी बातों को काट दिया है। एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। एनडीटीवी इंडिया ने अभिषेक मनु सिंघवी के स्टेटमेंट को छापा है कि यहाँ पर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये अपील 25 अप्रैल को हाई कोर्ट में की गई थी, 67 दिन बाद फैसला आया है। यह बेमिसाल है। एक पूरे समुदाय जो अपरिभाषित है उसमें मानहानि नहीं बनता। याचक कैसे मानहानि के शिकार हुए इसका नहीं पता चला। इसमें कहीं से द्वेष नहीं हुआ और ना ही कोई डैमेज हुआ। राहुल किसी केस में दोषी नहीं ठहराए गए। बीजेपी के लोगों ने उन पर कई केस दर्ज करवाया है। अब यहां पर देखिए इनकी जो बातें हैं, सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि जस्टिस हेमंत प्रक्षक इस बात का हवाला अपने निर्णय की कॉपी में कैसे दे सकते हैं, कैसे टिप्पणी कर सकते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर 10 केस चल रहे हैं। केस तो बहुत लोगों पर चल रहा है और उसमें मामले लंबित हैं। राहुल गांधी इसमें अभियुक्त हैं, दोषी नहीं है। फिर इनको इस केस में अटैच करने का मामला कैसे बना? आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है, किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में, तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सब का स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मामले राहुल गांधी पर लाए गए, जो भी केस दर्ज हुआ, वो बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता, बीजेपी के आम नेता, बीजेपी के ही ऑफिस बेरर, इन सब लोगों ने केस दर्ज कराए हैं। तो क्या इन सब बातों का संज्ञान लिया गया? जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने इन सब बातों का ध्यान रखा? नहीं रखा। जस्टिस हेमंत प्रक्षक की वो बात भी हैरान कर देने वाली थी जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने किया कि इन्हें वीर सावरकर की बातें कैसे याद आ गई कि वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, उसे भी इस मामले से जोड़कर वो देख रहे हैं। जबकि यह मामला कब का था, इसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा कब मिली? मार्च में जाकर मिली। और इधर महीने 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले
राहुल गांधी पर वीर सावरकर के पोते ने केस दर्ज करवाई है, तो फिर उसे इसका हवाला कैसे दिया जा सकता है? एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोपित है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। तमाम ऐसे मामलों को देखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने तार्किक तरीके से उनकी बातों को काटना शुरू किया। जरा अपने स्क्रीन पर आगे देखिए, एनडीटीवी ने लिखा है, किए हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट इसे जघन्य अपराध बताया है, जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगा। राजनीति में कैसे आरोप लगाए जाते हैं, निंदा से मानहानि होता है क्या, यह कानूनी तौर पर गलत फैसला है जो हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। इसमें पीएम की मानहानि नहीं हुई है, वह याचक कहां है? हम सुप्रीम कोर्ट जल्द जाएंगे। राहुल के खिलाफ ज्यादातर मामले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दाखिल किया है। तो देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बातें रखी, अदालत में भी सारी बातें रखी गई। बावजूद इसके गुजरात की अदालतों ने यह माना कि राहुल गांधी का अपराध बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसे में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इन सब अदालत ने इनकार कर दिया। मैं चाहता हूं, जो जजमेंट अभी 10 मिनट पहले हमें मिला, उसमें 2-3 स्पेसिफिक मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पैरा 43 और 1-2 और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। कानून में मॉरल टर्पिट्यूड परिभाषित वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी लिया जाए, वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णित न करे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। इसमें क्या मॉरल टर्पिट्यूड है मैं जानना चाहूँगा। वो कुछ नहीं बताया है आपको। पैरा 45 में कहा है कि हम इसको मॉरल टर्पिट्यूड भी मान सकते हैं और मानते हैं। अगर ये चीज़ें हो सकती है मॉरल टर्पिट्यूड, तो मैं नहीं समझता। और उसके पहले वाले पैरा 43 पे 43 में ऐसा एक पिक्चर दिखाई गई है जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ये क्लियरली, ये बड़े स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य प्रमुख गलतियां हैं जो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ठीक करेगा। कई और पृष्ठ हैं, पैरा 56 है जिसमें कि कहा गया है कि 499 यानी मानहानि एक बहुत ही जघन्य अपराध है। देश के विरुद्ध समाज के कई बड़े बड़े अंग हैं जिनके सार्वजनिक कैरेक्टर को वो आघात पहुंचाता है। मैं नहीं समझता कि अगर ये था तो जो विधायिका थी उसने ऐसे ऑफेंस के लिए मैक्सिमम दंड 2 वर्ष रखा, जिसको इस पैरा 56 में जैसे कोई डेथ पेनल्टी का ऑफेंस बना दिया है माननीय जज ने। विधायिका तो निर्णित करती है कितना जघन्य अपराध है। इतने जघन्य अपराध के लिए 2 वर्ष का रखती है मैक्सिमम सेंटेंस विधायिका। ये सब चीज़ें और अन्य चीज़ें हम रखेंगे समक्ष। तो आखिरी मंजिल कहाँ है वो सब आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिल रही है। जस्टिस हेमंत प्रक्षक के बारे में आप जानते हैं कि कैसे ये मोदी सरकार के करीबी रहे। गुजरात सरकार में भी इनकी भूमिका रही, कैसे मोदी जी इन्हें अपने पास बुलाए रखे, दिल्ली गए तो भी साथ ले गए,
और बाद में गुजरात हाई कोर्ट में आए और इस वक्त राहुल गांधी का केस लड़ रहे हैं, लेकिन वह केस जस्टिस गीता गोपी की बेंच को असाइन हुआ था। जस्टिस गीता गोपी ने इस केस को हाथ लगाने से मना कर दिया था, खुद को अलग कर लिया था। फिर हेमंत प्रक्षक आए और इनका जो भाजपा से कनेक्शन है वो जग जाहिर हो चला है। तो कैसे बिंदुवार तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस हेमंत प्रक्षक के फैसले की कॉपी में खामियां निकाल दी, हाईकोर्ट के फैसले को दोषपूर्ण करार दिया, वो आप यहां समझ गए होंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय करता है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो राहुल गांधी 8 साल तक ना सांसदी, ना विधायकी, ना सियासत कर पाएंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ऐसे मामले में संवेदनशीलता दिखाने की उम्मीद अगर अदालत से की जाती है तो वो यहाँ गुजरात में नहीं दिखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।